Good morning, children. Today we have to learn profit loss appropriation account. To distribute profit and loss among the partners, profit loss appropriation account is prepared after the preparation of the profit loss account in final accounts of the partnership firm. You understood that? Here, profit and loss appropriation account, how to prepare it? After the profit and loss account. Okay, profit loss appropriation is a part of the profit loss account. A separate preparation of this account is not mandatory. You understood properly, I think. Profit and loss appropriation account is not compulsory. It is a part of profit and loss account. Okay, now credit side of profit loss appropriation account. Which item we are recorded on the credit side of profit and loss appropriation account? See here, theory given. At the credit side of the profit loss appropriation account, net profit transferred from the profit loss account, interest on drawing done by the partners, interest on debit balance of current account of partners are credited. याद रखो अच्छे से ये तीन आइटम. फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें हमें नेट प्रॉफिट मिलता है और नेट लॉस. ओके, अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको आपको क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. अंडरस्टूड? एंड इफ लॉस है तो उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. ओके, इसके सिवाय और क्या चीज़ है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर आपने ड्रॉ किया है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको डेबिट साइड interest on drawing done by the partner, interest on debit balance of current account of partners are credited. Here all things are credited into credit side of profit and loss appropriation account. One more time you have to read that theory. Okay, now debit side of profit loss appropriation account. At the debit side of profit loss appropriation account, net loss transferred from the profit loss account, interest on partners capital account, interest on credit balance of the current account of partner, salary, bonus, commission, remuneration to the partners, amount transferred to general reserve account are debited. One more time you have to read all that theory properly. Debit side of profit loss appropriation account and which entry we are recorded debit side of profit and loss appropriation account. इसको याद भी रखना है. फिर से एक बार आप देखो कौन कौन सी आइटम हमें डेबिट करनी है. ओके, सी हियर अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस. तो जो नेट लॉस हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करना है. फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को वो आपको डेबिट करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड. देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको भी डेबिट करना है. इनके सिवाय अगर पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी देना है वो सारा सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. याद रखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स की इनकम है और ये सब फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करेंगे. ओके, और लास्ट एंट्री देखो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट आर डेबिटेड. और जनरल रिजर्व की जो अमाउंट होगी जो ट्रांसफ़र करेंगे उसको भी हम कहाँ पर डालेंगे? तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये सारी एंट्रीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा सब आपको याद रखना है. जब भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाएंगे दैट टाइम आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. ओके, नाउ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. After deduction of the total of the debit side of the profit loss appropriation from the total of the credit side of profit loss appropriation, difference is credited to partners capital or current account in their profit loss sharing ratio. ફરીથી વાંચો એકવાર. After deduction of the total of the debit side of profit loss appropriation from the total of the credit side of profit loss appropriation,
याद कैसे रखना है, तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करते हैं, वो यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। ओके, और डेबिट साइड का जो टोटल है उसको क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करो। ओके, और यहाँ पर जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस आपको क्रेडिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, इन विच रेशियो? इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। After the deduction of the total of the credit side of profit loss appropriation from the total of debit side of profit loss appropriation, difference, it means loss आएगा यहाँ पर। Loss is debited to the partner's capital or current account in their profit loss sharing ratio. तो in short, if प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है, एंड इफ लॉस देन डेबिट साइड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, नाउ सी हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्पेसिमेन आपको दी है, आप अच्छे से उसको देखो, समझो। अगर मेरी बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की अगर वो नहीं समझ आ रही है तो यहाँ पर सारी सब कुछ स्पेसिमेन कॉपी जो दी है उसमें बराबर अच्छे से लिखा है, आपको याद रखना है। ओके ओके, नाउ नोट गिवन, रीड प्रॉपरली। कमीशन टू मैनेजर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर। अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट वर्ड जहाँ पर भी लिखा है वो सारी चीज़ें, पूरी बुक में जहाँ पर भी नोट वर्ड लिखा है वो सारी बातें आपको याद रखनी है। ये सब फाइनल अकाउंट में आपको याद रख के उसका यूज़ करना है। जैसे कि कमीशन, मैनेजर को कमीशन दिया है या इंटरेस्ट दिया है लोन पर, गिवन बाय द पार्टनर, आई ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर की लोन जो पार्टनर्स ने दी है उस पर इंटरेस्ट अगर फर्म ने दिया है, बिजनेस ने दिया है, और एज अ मैनेजर कोई पार्टनर को कमीशन दिया है, वो दोनों चीज़ें आपको ट्रीट करनी है। कैसे ट्रीट करनी है? एक्सपेंस। वो बिजनेस फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज वेयर वी आर रिकॉर्डेड profit and loss account debit side. You know that all incomes are credited to profit and loss account, and all expense and loss debited to profit and loss account. Remember here, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो चीज़ है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट डेबिट नहीं करनी है। ये दोनों चीज़ें, मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करनी है। ओके, इज दैट क्लियर? द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल to both of these, hence are debited to profit and loss account. A debited information for interest on drawing, interest on capital and interest on loan of partners is given subsequently. हम बाद में फिर से देखेंगे, आपको यहाँ पर ये रिमेंबर भी करना है, याद रखना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट mentioned in the partner's capital or current account. Its accounting effect is given separately. The partner's loan is a liability of a business. Underline this sentence. The partner's loan is the liability of a business. Outstanding interest on the loan also will be shown as liability in the balance sheet. Okay, read properly and understood. Now next point, number 10, difference between profit loss account and profit loss appropriation account. Again I am telling, this is homework for you people. Okay, you have to read properly profit and loss account and profit and loss appropriation account. Okay, profit and loss account आपको अच्छे से आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंड नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या करना है हमने अच्छे से समझ लिया है। तो ये थियोरी आपके लिए होमवर्क है, आपको अच्छे से रीड करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन एंड जर्नल एंट्रीज फॉर स्पेशल इश्यूज। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन interest on capital is payable, interest on capital always payable, not always payable, if
in partnership deed is that mention interest on capital given on capital, then only we have to give interest on capital. If interest on capital is payable, then which journal entry pass? Okay, then see, interest on capital account is debited to partners capital and current account credited. फिर से अच्छे से याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ एक्सपेंस हमें डेबिट करना है और पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट करना है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है, देखो, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो हमने डेबिट किया है वो अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बंद करना होता है, और उसे बंद करके हमें कहाँ लेके जाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है, अगेन आई एम टेलिंग, it is a expense, and expense always debited to profit and loss account or profit and loss appropriation account debit side. तो here interest on capital account क्लोज करके हमें लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. सो जर्नल एंट्री लाइक दिस, profit and loss appropriation account debited to interest on capital account credited. Here one time हमने interest on capital account debit किया था, now this time interest on capital account credit करेंगे. it means interest on capital account यहाँ पर close हो जाएगा, और वो interest on capital की जो amount है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड. अंडरस्टूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपरली. सी हियर, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, आपको पूरे साल याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट ओनली इन फाइनल अकाउंट, डेट एडमिशन and that retirement or that death. Every time we have to remind this sentence or that journal entries. Okay, now on the next page, page number 10. Second point, salary, bonus, commission, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स. फिर से पार्टनर्स को सैलरी देंगे या फिर कमीशन देंगे या फिर बोनस देंगे या फिर रेम्यूनरेशन लेंगे, वो पार्टनर्स के लिए इनकम है और बिजनेस फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस. ओके, तो उसके लिए हमें कौन सी जर्नल एंट्री लिखनी है, तो यार पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड. तो कल से नहीं, बहुत दिन से मैं आपको ये सिखा रही हूँ, जब से हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पढ़ना शुरू किया तब से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड डालेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स की इनकम है. ओके, तो नाउ जनरल एंट्री लाइक दिस, पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिटेड. ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर दैट सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, तो वो सेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड. तो यहाँ पर भी जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट बंद करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके गए, सेम वे ईयर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अकाउंट क्लोज करके उसको भी हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो जर्नल एंट्री लाइक दिस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन अकाउंट क्रेडिट. तो जैसे ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिमाइंड दिस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर्स करते हैं. ओके, और ड्राइंग के अगर ऊपर इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को तो वो बिजनेस फर्म के लिए वो इनकम है और पार्टनर्स के लिए है एक्सपेंस. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कौन सी जर्नल एंट्री होगी, सी हियर, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड that time journal partners capital and current account debited to interest on drawing account credited. तो here
पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड. तो पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिटेड. ओके, चलो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट ड्राइंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर उसको क्लोज करके आपको लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज हियर फर्म के लिए ये इनकम है और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर होगा क्रेडिट. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्लोज करेंगे डेट टाइम to interest on drawing account debited to profit and loss appropriation account credited. Understood children? Now number 4, profit transferred to general reserve. At the end of the year profit ट्रांसफ़र कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो जनरल रिजर्व में. प्रॉफिट होता है तो जनरली हम पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन लोगों को दे देते हैं, लेकिन परंतु sometimes every year that partners have decided to from their profit some part of profit transfer to general reserve because of their कभी भी उन लोगों को कोई ईयर उसको लॉस हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक आप देखते हो कि मंदी आती है या फिर बहुत बारिश होती है या फिर Sorry children, let's continue. Profit transfer to general reserve. That time journal entry profit and loss appropriation account debited to general reserve account credited. Okay, now fifth one, profit or loss of profit loss appropriation account. Now at the end of year the profit and loss appropriation account we have to close, and that time we have to do total both the side, if loss and if profit. That time which type of journal is passed? See that point number 5, when profit or loss of profit and loss appropriation account is distributed among partners in their profit sharing ratio. Underline this sentence. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा वो होगा डिविजिबल. अंडरस्टूड? हियर हर पार्टनर्स को उसके शेयरिंग के हिसाब से हमें उसको डिवाइड करना होता है. सो हियर ફરીથી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ में gross profit and gross loss. Okay, remind you know that properly. Gross profit and gross loss in trading account, net profit and net loss in profit and loss account, and now here profit and loss appropriation account. In this account, if loss it means divisible loss, and if profit it is a divisible प्रॉफिट. ओके, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, अगर डिविजिबल लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है. जर्नल लाइक दिस. सी, इन केस ऑफ प्रॉफिट दैट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. पार्टनर्स के लिए इनकम है और बिजनेस फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, लॉस. बराबर, एक्सपेंस एंड लॉस वी आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिटेड. नाउ इन केस ऑफ लॉस, ओके, अगर लॉस है तो डेट टाइम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. यू अंडरस्टूड प्रॉपरली? नाउ पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स. सी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इट मीन्स यहाँ पर पार्टनर्स ने लोन ली नहीं है, पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दी है. अगर पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दी है तो उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो कंपलसरी है. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने पढ़ा है अच्छे से कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर उस मेंशन नहीं किया है कि कितने % इंटरेस्ट देना है, देन नो प्रॉब्लम. वी आर refer that the Partnership Act 1930, as per that Partnership Act 1932 or 2013, 6% per annum we have to pay interest on loan if not mentioned that percentage in the partnership deed.
ओके, देन इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, और बिजनेस फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो अगेन हियर आई एम टेलिंग यू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन where we are recorded, then profit and loss account debit side. Okay, so here see interest on loan of partners, when interest on loan is paid, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पेड इन कैश, अगर कैश में दे देते थे टाइम, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, हियर कैश गिवन टू द पार्टनर्स, इट मीन्स कैश goes from the business to cash account credited. Second, when interest on loan is outstanding, outstanding it means आपने पे नहीं किए हैं लेकिन आपको पे करना है, डेट टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिटेड। याद रखो, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया है तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। ओके, और लायबिलिटी की जर्नल कैसे करेंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, थर्ड, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको ये अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा, ये अकाउंट क्लोज करके आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, वो मैंने जो नोट वर्ड आपको बोला था वहाँ पर हमने अभी नेक्स्ट लास्ट पेज में सुना ना, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन we have to record it in profit and loss appropriation account, profit and loss account debit side, not profit and loss appropriation account. Okay, remind that manager's commission and interest on loan we are recorded to profit and loss account only. Okay, इनके सिवाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, bonus, commission, profit and loss, everything we are recorded profit and loss appropriation account, but interest on loan and manager's commission recorded in profit and loss account debit side. So at the end of the year, to close interest on loan account, that time we journal entry pass profit and loss account debited to interest on loan account credited. Okay, note again given here, see there can be combined journal entry for the above stated ट्रांजेक्शन नंबर 1 to 3, जर्नल कंबाइंड जर्नल पर यहाँ पर दी हुई है, आप अच्छे से देखना। ओके।